So hello guys, welcome back to this another video, and in this video we are going to solve today's LeetCode daily challenge of June 23. So let's read the statement and then we'll move to the solution. So today's problem name is longest continuous subarray with absolute difference less than or equal to limit. So the problem statement is given an array of integer nums and an integer limit. Return the size of longest non-empty subarray such that the absolute difference between any two elements of this subarray is less than or equal to limit. So this problem is the problem of the sliding window. Yesterday we solved this similar kind of problem. So today also we apply the same approach and we will try to solve this problem using sliding window. But before that, let's see the test case and the brute force solution. So let me copy this here, and so here in this array it is clearly mentioned that you have given an array of 8 2 4 7 and limit is 4, and you have to find out the largest subarray size where the difference between minimum any two element means if the difference between minimum and maximum and minimum will be less than equal to k, then it is always possible we will get less than that limit difference for any other two values in that particular subarray, because the highest value is maximum, the lowest value is minimum, and आगे की किसी भी वैल्यू के लिए जो डिफरेंस होगा और किसी भी पेयर के लिए जो डिफरेंस होगा वो लेस देन इक्वल टू ही लिमिट होगा. सो इसमें क्या करना है, 4 दिया गया है. हम देखो इसमें जो सवेरे होगा 8, कौन सा सवेरे 8 2 नहीं है, 2 4 ये एक्सप्लेन किया गया है. 8 नहीं है, 8 2 में 6 का डिफरेंस है जो कि ग्रेटर है. 8 2 4 में 6 का डिफरेंस है 8 और 2 के बीच. 8 2 4 7 में भी 6 का डिफरेंस है. सो ये पॉसिबल नहीं है. जब 2 के लिए 0, 2 से 4 सेटिस्फाई करेगा तो आंसर 2 होगा. 2 4 7 में भी जो डिफरेंस है 2 और 7 के बीच है 5 का, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा. 4 0 है, सेटिस्फाई करेगा. 4 7 3 है, सेटिस्फाई करेगा. तो हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल हमारा अब तक इसमें जो मिनिमम डिफरेंस जो कि लिमिट से कम जो मैक्सिमम डिफरेंस जो कि लिमिट से हम कम पाए हैं वो है 2. सो इसमें जो 2 और 4 होगा वो आंसर का पार्ट होगा, या 4 और 7 आंसर का पार्ट होगा, या 8 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा. ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट साइज है वो 2 है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा. इसको कैसे अप्रोच करेंगे, इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो यही है कि हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स जनरेट ऑल पॉसिबल subarrays and then find mean and max and then check difference. If diff less than equal to limit, then update answer and return the maximum answer. But we will not going to solve this approach because this will take more time. The complexity will be higher in this case. So we will try to solve this problem using our traditional approach, sliding window. So guys, how we will apply sliding window? In yesterday's video I have already explained the concept. So we have L equals to 0, R equals to 0 and answer equal to 0, and we will run an loop r less than equal to n. Every time we will extend our window size by 1, and we will check whether, like, let's say if the current window size is this from 0 to 3, so we will check in 0 to 3 what is the maximum element and what is the minimum element. And if the difference of the minimum, if the diff of max and mean is lesser than equal to limit, we will expand our size. That's now 0 to 4. But if difference of max minus mean is greater than limit, then we have to shrink our
window size. So what we will do, we will shrink our window size 1 to 4, and we will do the shrinking of window size until our condition is satisfied that difference between max and min is less than equal to limit. But guys, the problem is how to get that maximum and minimum value, because हम फॉर लूप फिर से अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम हर एक विंडो साइज के लिए हम फॉर लूप लगा के चेक करें कि इसमें क्या मिनिमम है, इसमें क्या मैक्सिमम है. तो उसके लिए हमें कुछ ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर चूज करना पड़ेगा जो कि हमें ये चीज़ ला के दे दे. तो उसके लिए गाइस वी हैव सेट में ये सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यूज स्टोर करते हैं, बट सेट के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये यूनिक वैल्यूज ही रखता है. व्हाट इफ in our array there is duplicate elements, so set will be not able to handle all the cases. So what we will use multiset we will use. In multiset it is also store the data in sorted fashion, and it also handles the duplicate value, so it can store duplicate value in sorted fashion. So what we need to do, we just need to do, when we are expanding our window size, we will insert value into multiset. Okay, and when we are shrinking our window size, we will erase the left value from multiset. In this way our multiset will store only the element within the range of from L to R. Right? So for getting the minimum value, what we will do, we will just empty dot begin, and for maximum value star empty dot R begin, and this we will get in order of log n time. And when we have to erase some value, what we will do, we will write empty dot erase that nums of left. But guys, there is issue with this erase function. It will erase all the instances of that particular number. If it is present 3 or 4 times in the multiset, it will erase all the instances of that values in the multiset. So what we will do, for deleting only single value from the multiset, we will use empty dot find empty dot erase empty dot find that value nums okay empty dot value ये this is nums dot left, guys. Right? So in this way we will get all our requirements satisfied. Right? So हमारे को min भी मिल रहा है, हमको max भी मिल रहा है, हम erase भी कर पा रहे हैं. तो in this way our multiset will always store only the values in range of L to R. Right? So guys, so we just need to and that erase function is also working in order of log n time. And this find function gives the iterator to the first value. That's why it is erasing the only first value that is present in the M multiset. So what to do? Now we will write the code for this solution, and let's see pass होता है कि नहीं होता है. So now let's try to write code. So as usual, left is equal to as usual left equals to 0, int right equals to 0, int answer equals to 0, and we will initialize multiset. and while traditional, यहाँ तो हमारा ट्रेडिशनल स्लाइडिंग विंडो है. n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारी nums डॉट साइज के इक्वल टू होगी. एंड हम क्या करेंगे, हम empty डॉट इंसर्ट कर देंगे. क्या कर देंगे empty डॉट इंसर्ट, हम empty डॉट इंसर्ट में nums r डाल देंगे.
और हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेडिशनल लूप कि हम एक चेक डालते हैं कि क्या हमारा जो मैक्स और मीन की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट है कि नहीं। तो इसके लिए इंट मैक्सी निकाल देंगे और इंट मिनी निकाल देंगे। मैक्सी क्या होगा, स्टार एम टी आर बिगिन, लास्ट की जो वैल्यू जो होगी वो मैक्स होगी, और एम टी डॉट बिगिन। ये हमको मैक्स मिन दे दिया, तो हम मैक्सी माइनस मिनी चेक करेंगे कि ये ग्रेटर देन के है कि नहीं। ये जब तक के ग्रेटर देन है, ये हमारा एक्सपेंडिंग विंडो एंड ये हमारा श्रिंकिंग विंडो अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे हम, empty dot erase empty dot find and nums of left. We will erase nums of left and left plus plus, right? And also we have to update maxi and mini. तो मैक्सी विल बी स्टार, क्योंकि अब हम कुछ इरेज कर दिया तो हमको नया मैक्सी मिल गया ना। आर बिगिन एंड मिनी एम्प्टी डॉट बिगिन। तो ये हमारा सिंकिंग फेज है, और ये अगर चल गया, यहाँ तक कोड हमारा चल रहा है, मतलब कि हमारे पास अब जो विंडो बचा हुआ है वो वैलिड विंडो बचा हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, आंसर को मैक्सिमाइज कर देंगे। आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर एंड राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, राइट, एंड वी विल इंक्रीज राइट प्लस प्लस एंड वी विल रिटर्न आंसर, राइट। रन करा के देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। और गाइज व्हाट इज द इशू, या आर, दिस इज नॉट आर, दिस इज राइट। सो इसको देखते हैं। अगेन इशू, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है आजकल। अगेन के, ओ दिस इज नॉट के, दिस इज लिमिट। आदत है ऐसे के लिखने की ना स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चंस में। सो लेट्स सी, and so many typing mistake today guys। वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं। सबमिट करके देखते हैं, सैंपल तो पास हो गया। और गाइस एक्सेप्टेड। सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, बताता है कि नहीं n log n होनी चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी। And yeah, n log n, because we are iterating over n, and every time we are inserting an element, at least we are inserting an element into multiset, and multiset insertion takes log n time. That's why the time complexity will be here log n. So अब उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो रही है ऑर्डर ऑफ n log n, और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी हो रही है ऑर्डर ऑफ n। मल्टीसेट यूज़ किया है गाइस। क्या हम इसको थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ n log n से क्या हम ऑर्डर ऑफ n ला सकते हैं इसको? तो गाइस हम इसका पूरा कोशिश करेंगे लाने की, इसको कैसे ला सकते हैं। इसको डिलीट करो यार। हाँ, इसको कैसे ला सकते हैं? तो गाइस हमारे साथ क्या इशू है, हमारे साथ बस मैक्स और मिन निकालने का इशू है। ये चीज़ हमें लॉग इन में मिल रही है। क्या हम इसको समहाउ ऑर्डर ऑफ 1 में निकाल सकते हैं? गाइस यस, देयर वी हैव वन मोर डेटा स्ट्रक्चर DQ। इसमें क्या होता है, इसमें जो पुशबैक, ये एक डबल एंडेड लिंक लिस्ट टाइप से काम करता है। इसमें हम पुशबैक, पॉप बैक एंड पॉप फ्रंट एंड पुश फ्रंट, इतने ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। हम एंड से एलिमेंट डाल सकते हैं, स्टार्ट से एलिमेंट डाल सकते हैं, एंड से एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, और स्टार्ट से भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। और ये हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एक एक ऑपरेशन की, वो ऑर्डर ऑफ 1 है। तो हमको ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ये सब मिल रहा है। तो गाइस क्या हम इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं कि हम एक मोनोटोनिक DQ मेंटेन करें, जो कि हमेशा उस पर्टिकुलर विंडो के लिए हमें क्या बोलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम दे दे? गाइस यस, वी कैन डू दैट। हाउ?
Guys, just see, we will create two DQs. One is max DQ and second one is min DQ. हम दो DQ बनाएंगे, एक मैक्स DQ और एक min DQ, और इसको हम मोनोटोनिक वे में ऐसे रखें, ऐसे इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे कि इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो एक मोनोटोनिक रेंज में होंगी, और क्या होगी, हमेशा जो वैल्यू होगी, जो स्टार्ट की वैल्यू होगी, फ्रंट की जो वैल्यू होगी, वो उस पर्टिकुलर सब एरे का मीन या मैक्स बताएगा। मीन DQ की जो पर्टिकुलर सब एरे की जो फर्स्ट वैल्यू हो वो मिनिमम बताएगी, और जो मैक्स DQ की जो फर्स्ट वैल्यू है वो मैक्सिमम बताएगी। इसको थोड़ा टेस्ट केस से समझ लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो गाइस देखो, एक टेस्ट केस लेते हैं, ये वाला टेस्ट केस ले लेते हैं। पहले हम समझते हैं कि मीन DQ मैक्स DQ काम कैसे कर रहा है। देखना गाइस, देखो अब हमारे पास एक मैक्स है और एक मिन है। गाइस अभी देखो, हम एक सब एरे की बात कर रहे हैं, एक लेंथ की सब एरे 10। तो अभी मैक्स में कुछ नहीं है, मिन में कुछ नहीं है, तो हम 10 डाल दिए, दोनों में 10 डाल दिए। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर सब एरे के लिए हमारा मैक्सिमम भी 10 है और मिनिमम भी 10 है। अब गाइस देखो, अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा जो एरे साइज हो गया 10 और 1। गाइस देखो, जैसे ही 1 आया गाइस, अब बताओ, अब जैसे ही हमारा 1 आया, मिनिमम को पहले देखो, जैसे ही 1 आया, क्या 10 अब हमारे लिए कोई वैल्यू क्रिएट करेगा? जब हम इस सब एरे में हैं, जब हम इस पर्टिकुलर 10 1 में सब एरे में हैं, क्या हमारा जो 10 है वो आगे किसी भी सब एरे के लिए, किसी भी सब एरे के पार्ट के लिए मैक्सिमम वैल्यू रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, हमको इस 10 को रखने का कोई मतलब नहीं है, हम 1 कर दिया। बट 1 for maximum this one can be the maximum for any other array. So what we will do, we will insert it in max, क्योंकि 1 तो आगे किसी सब एरे के लिए मैक्सिमम हो सकता है। क्योंकि मान लो जब 10 1 पे है और हम इसको हम क्या किए, जस्ट गाइस 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, अगर 10 1 है, जब हम इसको श्रिंक किए तो अब 1 हो गया रहेगा हमारा, तो हाँ, ये 1 हो सकता है। ठीक है, तो गाइस देखो, अब क्या करो, अब मान लो हम इस एरे की बात करते हैं 10 1 2। इन दिस केस जब 2 आया, क्या 2 किसी के लिए मैक्सिमम रह सकता है? 2 1 से मिनिमम रह सकता है, या हो सकता है जब हम 1 को श्रिंक कर दे जो 2 मिनिमम रह सकता है तो हम 2 को पुश कर देंगे। ठीक है, क्या 2 किसी के लिए मैक्सिमम रह सकता है आगे? यस ऑफ कोर्स रह सकता है कि नहीं रह सकता है? रह सकता है, तो हम 2 को डाल दिए। ठीक है गाइस, गॉट इट। बट वन मोर थिंग, एक बार जब 2 पे हम आ गए तो क्या 1 किसी के लिए मैक्सिमम रह सकता है? 1 किसी के लिए मैक्सिमम रह सकता है किसी सब एरे के लिए? एक बार अगर हम इस 2 के विंडो में आ गए तो अब 2 ही तो मैक्सिमम रहने वाला है, तो इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको मैक्स में रखना ही क्यों है? तो गाइस इसको हम रखेंगे ही नहीं, इसको हटा देंगे, सिर्फ 2 रखेंगे। 2 नाउ व्हेन वी मूव टू 10 1 2 4 के लिए चेक कर, क्या 4 मिनिमम रह सकता है? क्या 4 मिनिमम रह सकता है? रह सकता है, आगे के लिए मिनिमम रह सकता है, तो हम 4 रख देंगे इसमें। क्या हमारा 4 मैक्सिमम रह सकता है? क्या हमारा 4 मैक्सिमम रह सकता है? रह सकता है, क्योंकि 4 हमारा मैक्सिमम रह सकता है, क्योंकि अगर हम 4 पे आ गए हैं तो 2 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमको 2 को हटाना पड़ेगा और हम 4 रख देंगे। तो एक तरीके से इसमें हम क्या कर रहे हैं गाइस, हम मोनोटोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मोनोटोन DQ। और गाइस लेट्स से कि इफ़ वी आर इन सब एरे 10 1 2 4 एंड एक्सपेंड का तो हमने समझ लिया कि हम अपने मैक्स DQ और मिन DQ में एक मोनोटोनिक
एलिमेंट्स इंक्रीजिंग, मिन में इंक्रीजिंग एंड मैक्स में डिक्रीजिंग टाइप का बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सपोज स्टैंड 1 to 4 में हमको जब 10 को डिक्रीज करना है और अब हमारा सब एरे 1 to 4 है, तो गाइस जब हम इसको हटाएंगे तो चेक करेंगे कि 10 है वो हमारे मैक्स डी क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है या मिन डी क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है। गाइस देखोगे कि जो हमारा 10 है वो मैक्स डी क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम इसको पॉप बैक कर देंगे। अब हमारा जो मैक्स होगा वो 4 पे ही रहेगा क्योंकि पहला एलिमेंट 4 है। तो गाइस देखो इसमें भी मैक्स 4 है और मिनिमम स्टिल 1 है। फिर जब इसको श्रिंक करोगे तो 2 4 पे पहुँचोगे, 2 and 4 पे पहुँचोगे, राइट। तो 2 4 पे जब पहुँचेंगे तो हम चेक करें कि 1 किसका था, तो देखोगे 1 इस मिन डी क्यू का फर्स्ट एलिमेंट था, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि अब इट इज़ नो मोर। ठीक है, तो अब देखना है 2 4 में अभी जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है मिन डी क्यू का 2 वो अभी का मिनिमम है। तो हमको डी क्यू को ऐसे मेंटेन करके चलना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सब एरे का मिनिमम रहे और मिन डी क्यू में, और मैक्सिमम रहे मैक्स डी क्यू में। तो हमको ऐसे मेंटेन करके चलना है और जो वैल्यूज अभी आगे आने वाली है उनको भी ऐसे मेंटेन करके रखना है कि अगर वो आगे वैल्यू ऐड कर रही हैं किसी डी क्यू में तो उसको डिलीट नहीं करना है, उसको इंसर्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। तो गाइस देखो और देखो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होगा। सो इस केस में इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे हम, क्या बोले हैं हमको क्या क्या ज़रूरत है, हमको इंट n की ज़रूरत है जो कि nums डॉट साइज रहेगा, हमको इंट लेफ़्ट की ज़रूरत है, हमको इंट राइट की ज़रूरत है, राइट की ज़रूरत है और इंट राइट की ज़रूरत है और इंट आंसर तो हमारा रहेगा। फिर हमको एक डी क्यू बनाना है, मैक्स डी क्यू, और एक डी क्यू बनाना है मिन डी क्यू। और वाइल हमारा जो राइट है RIGHT राइट लेस देन n है, हम क्या करेंगे, हमको मोनोटोन मिन डी क्यू और मोनोटोन मैक्स डी क्यू यहाँ पे करना है। तो देखो क्या करना होगा, वाइल डी क्यू डॉट साइज, जब तक डी क्यू हमारा अभी है उसमें वैल्यूज हैं एंड जो डी क्यू का जो लास्ट एलिमेंट है, जो डी क्यू का जो लास्ट एलिमेंट है वो अगर ग्रेटर देन है नम्स ऑफ राइट के, मतलब कि जो नम्स ऑफ राइट है वो स्मॉलर है डी क्यू के बैक से, तो मतलब हमारा जो सब एरे है वहाँ तक एक्सपेंड हो गया है। तो अगर वो वैल्यू जो वहाँ तक एक्सपेंड है वो वैल्यू ही मिनिमम है तो उसके पहले की जो बैक वाली वैल्यू है उसको रखने का कोई मतलब नहीं है, तो जब तक वो मिनिमम है हम तब तक उसको वहाँ पे पॉप कर देंगे। जब तक डी क्यू बैक अपने नम्स राइट से बड़ा है उसको हम पॉप बैक कर देंगे। और जैसे ही ये लूप ख़त्म हो गया, मतलब कि जो डी क्यू या तो एम्प्टी हो गया या तो जो डी क्यू में वैल्यू है वो तो इक्वल टू है या फिर लेस है, ठीक है। तो उस केस में हम ये जो हमारी करेंट वैल्यू हो आगे के लिए मिनिमम हो सकती है, तो डी क्यू डॉट पुश मिन डी क्यू डॉट पुश बैक नम्स ऑफ RIGHT राइट कर देंगे। इसको भी मिन डी क्यू करना पड़ेगा, मिन डी क्यू, एंड इसको भी मिन डी क्यू एंड इसको भी मिन डी क्यू। सिमिलरली मैक्स डी क्यू मेंटेन करते हैं, जो वाइल हमारा मैक्स डी क्यू डॉट साइज है, मैक्स डी क्यू में एलिमेंट है एंड जो मैक्स डी क्यू का जो बैक एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट है वो स्मॉलर है अगर नम्स राइट के, मतलब कि हम वहाँ तक एक्सपेंड कर दिए हैं। तो जो अगर वो स्मॉलर है तो अब वो किसी एरे के लिए मैक्सिमम हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हमारा जो राइट है वो नम्स राइट तक आ गया है, तो वो अब किसी भी सब एरे के मैक्सिमम नहीं होगा। तो हम क्या कर देंगे, मैक्स डी क्यू से पॉप बैक कर देंगे वो एलिमेंट, ठीक है। और फाइनली हम मैक्स डी क्यू में इंसर्ट कर देंगे, पुश बैक कर देंगे अपना ये एलिमेंट नम्स ऑफ राइट। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें चेक करना है कि जो मिन और मैक्स का, जो मैक्स डी क्यू का जो फ्रंट है, फ्रंट FRONT फ्रंट है माइनस मिन डी क्यू का जो फ्रंट है, उनका जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन अगर के है कि नहीं गाइस, लिमिट अगर लिमिट है
अगर उसका जो डिफरेंस एलिमेंट है मैक्स और मिन, क्योंकि जो फ्रंट एलिमेंट है वो मैक्स और मिन को ही रिप्रेजेंट करेगा, उनका जो डिफरेंस है अगर वो ग्रेटर देन लिमिट है तो हमको चेक करना होगा कि जो नम्स ऑफ लेफ्ट है, क्योंकि अब हम यहाँ श्रिंक कर रहे हैं, वो मैक्स डी क्यू का फ्रंट है कि नहीं। अगर नम्स डॉट लेफ्ट जो है मैक्स डी क्यू का फ्रंट है तो हम मैक्स डी क्यू से फ्रंट को ही रिमूव कर देंगे। अदरवाइज इफ जो हमारा नम्स लेफ्ट है वो मेन डी क्यू का फ्रंट है, मतलब मेन डी क्यू के फ्रंट के इक्वल है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम मेन डी क्यू में पॉप फ्रंट कर देंगे और इस तरीके से, और हम लेफ्ट को 1 से प्लस कर देंगे। तो एक तरीके से हमारा ये हो गया। अब हमें बस जस्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब हमारा जो सब एरे होगा वो एक वैलिड रेंज होगा, उसमें मिन मैक्स लेस देन इक्वल टू, उनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट रहेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम आंसर को बस मैक्सिमाइज कर देंगे आंसर से और राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 से, और व्हाट वी विल डू, वी विल रिटर्न आवर आंसर फ्रॉम हियर, रिटर्न आंसर। तो गाइस रन करके देखते हैं सो क्या ये पास होता है। memory limit exceeded, what we missed here. So guys, actually we forget to write plus, so that's why it is giving memory limit is exceeded. Now let's try to run it. Or guys, accepted. Let's try to submit it, and guys, let's see, and guys, accepted. So we have successfully solved this problem in order of and time complexity. So now what is the time complexity of this code? What is the time complexity of this code? Time complexity of this code will be order of n, and also the space complexity of this code will be order of n, क्योंकि हम डी क्यू यूज़ कर रहे हैं और वाई एन हम इधर O1 में अपना वो ले पा रहे हैं, अपना मिनिमम है मैक्सिमम। गाइस तुम लोग बोल रहे होगे कि लाइक यहाँ वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, बट ओवरऑल द एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट एक ही बार उस डी क्यू में रह रहा है, सो लाइक हम एक रिमूव कर दे किसी भी एलिमेंट को, हम डबल इंसर्ट या डबल रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे राइट के लिए हमारा वाइल लूप चलने वाला है। तो ओवरऑल ये एन एलिमेंट्स के लिए ओवरऑल वो एन चलेगा। सो पर्टिकुलर फॉर एनी एलिमेंट एमोर्टाइजेशन करेंगे तो O1 ही आने वाला है। सो फॉर ओवरऑल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड विल बी ऑर्डर ऑफ n only, and the space complexity will be order of n only, because we are using dq, and maximum we will push only the n elements in that particular dq. So this is all about the today's problem. I will insert both the code in the description section. Just like this video, and if there is any query, then do comment in the pin any comment, and कुछ भी इशू है तो लिख दो, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।